For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. What is a customs broker? Not who. What is a customs broker? And I'm sure many of you haven't even thought about it. You have your custom broker with you, but you've never been able to really understand what is a custom broker. Before we answer that, let us answer who is a customs broker. Anybody who has been licensed under the regulations to discharge duties as a customs broker is a customs broker. So that answers the question who. But what I want to reach out to you is what is a customs broker? We must understand that the custom broker is right at the center of international trade. It is he who ensures compliance. It is he who ensures that all export and import happen within the boundary of the law. It is the custom broker who gathers, organizes, and manages all the information, all the data, all the rules, all the regulations, all the circulars, public notices, standing orders, instructions to ensure that international business happens within compliance limits, happens within the law. It is he who feeds the government departments with a lot of information which helps them facilitate clearances, which helps them make clearances smoother, which helps them in deciding the risk management systems that need to be decided, which helps them in working on the safety, security, sovereignty of the country. The custom broker has a huge amount of capability. The skill sets that he owns are unmatched. Whether you talk about valuation, you talk about classification, you talk about importability, you talk about dealing with the various participating government agencies, right from drugs to wildlife to plant and quarantine to phytosanitary to FSSAI, the custom broker is capable of dealing with each and every one of them. He also understands how the data has to be managed. He also understands housekeeping, record keeping. He also understands transportation, port operations, air cargo operations, hazardous goods, overdimensional goods, heavy packages, valuable goods, perishable goods. He understands supply chain security. He understands taxation. He understands duty collection. He also inadvertently finances part of the operation. And most importantly, he helps the exporters and the importers in the movement of their international cargo seamlessly, smoothly, and on time. The custom broker understands each of these. So the next time you deal with a custom broker, please remember what is a custom broker. Celebrating the 10,000 plus licensed customs brokers and 3 lakh plus office and field executives who handle more than 98% of customs clearance in India. Start of this session, I was speaking to the few who are here. About 12 people are here right now. Rest of them, since our ICDs are little far off, and this is the time actually where the out of charge and everything is being done. So in case we are able to get the recording, we can share with them so that they can see what has happened in this session. तो सबसे पहले तो सर मैं इनको सबको आपके बारे में और आपके वीरेंद्र दयाल सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि समीर भाई हमारे लिए तो बड़े भाई हैं, हमारे मेंटर हैं,
जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर कस्टम हाउस में एक रिकग्नाइज्ड कस्टम हाउस एजेंसी की एसोसिएशन रहती है, और समीर भाई काफी देर अहमदाबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और आज भी चेयरमैन है वहाँ की एसोसिएशन के। इसके अलावा समीर भाई गुजरात पोर्ट पे सर ट्रस्टी या मेंबर कैसे? It's called a member of the maritime cluster. मेंबर ऑफ द मैरीटाइम बोर्ड। सो WCO जो हमारा वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज बीन अवॉर्डेड फॉर हिज सर्विसेज टू द ट्रेड, and he has been helping even the government officers officially at times, and many times unofficially also, in guiding them that how the customs law requires to be interpreted, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना और कैसे काम करना है। हमको कभी कोई दिक्कत आती है, जैसे आप लोग हमसे कुछ पूछ दो, हम सीधा इनको फोन करते हैं और हमें रिप्लाई मिलता है, और उस तरह हम आगे चलते हैं। हर एक का कोई ना कोई गुरु हमारे लिए गुरु और मेंटर है। लुधियाना में सर 2-3 बार आ चुके हैं, हमारे रिक्वेस्ट पे हमेशा आते हैं। 2-3 सेशन ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन के साथ सबने करें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है आपको। ज्यादा जानकारी जानने के लिए JBS एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। और इनके साथ जो आज का सेशन हैंडल करेंगे मिस्टर वीरेंद्र दयाल जो है, दयाल सर भी CHA भी हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी है जो वो CHA का काम में इन्वॉल्व है। ठीक है, पर उनका जो मेन इंटरेस्ट शुरू से रहा है वो ट्रेनिंग में रहा है, और ट्रेनिंग में भी इतना ज्यादा है कि हर साल 100 से ऊपर लोग तैयार कर देते हैं जो हमारी ट्रेड में आके वो काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी भूमिका मैंने आपको बताई है, बाकी जब आप इनकी बात सुनोगे आपको खुद समझ आएगा। तो कि मेरे लिए तो सूरज को दिया दिखाने के समान है ये बात। तो जब बात सुनेंगे आपको ज्यादा चीज पता चलेगी, क्योंकि शाम का टाइम है, मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा और सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, और आप जितने भी राजेश जी के साथ बैठे हैं और अपने दूसरे दोस्तों जिन्होंने अपने ऑफिस से या फोन से या घर से लॉगिन किया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने जी कार्ड के बारे में सोचा है और आप ये एग्जाम लेने वाले हैं। जी कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। कहीं ना कहीं हम लोग सब ये भूल जाते हैं कि हम लोग कौन है, हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी इम्पोर्टेंस भी क्या है। और जी कार्ड की एग्जामिनेशन पिछले 5-6 सालों से बहुत ही इराटिकली हो रही है ऑल ओवर इंडिया, और आपके नेशनल फेडरेशन ने बहुत मेहनत की है कि कस्टम्स को समझाने के लिए कि आपको हर साल जी कार्ड की एग्जामिनेशन तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस भी बंदे ने जी कार्ड की एग्जाम पास की है, हम लोग समझते हैं कि उसको बहुत सारी चीजें आती है। और आप देखेंगे आज कि आपको तैयारी कौन सी करनी है, मगर जब भी आप तैयारी के बारे में सुनेंगे तभी आप देखेंगे कि इसमें से सभी कुछ आपने सुना है, मगर आपने कभी सोचा नहीं है कि मुझे इसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आपको ये पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपको उसके अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, वो सब वीरेंद्र सर आपको बताएंगे। मैं आपसे आपके ये जी कार्ड क्या होता है, उसकी अहमियत क्या, इम्पोर्टेंस क्या होती है, आप और हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा आपसे ये जी कार्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, अपने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में। शायद ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आप में से कुछ लोग थोड़े डर जाएंगे, मगर डरना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो ही आप अगले 10-12 दिन जो आपके पास है तैयारी करने के लिए, तो आप उसको बहुत ही सीरियसली ले सकेंगे, और आपको बहुत ही सीरियसली लेना भी चाहिए। आपने वो जो वीडियो सुना था, वो वीडियो में एंड में लिखा था
कि करीबन 3 लाख लोग हैं ऑल ओवर इंडिया जो ये कस्टम क्लियरेंस का काम करते हैं, मगर 3 लाख में से टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनके पास कोई भी कस्टम का पास है वो तो 70-80 हजार से कम है, और 70-80 हजार ओवर मोर देन 32 इंडियन सिटीज, और उसमें कुछ तो बहुत ही बड़े शहर हैं। बॉम्बे आप देखिए, मुंद्रा देखिए, चेन्नई देखिए, बहुत ही बड़े, और वहां पे 2-2 हजार CHA काम करते हैं। तो ये नंबर जो है 70-80,000 का, जो जी कार्ड होल्डर्स का, वो इंडिया की इतनी बड़ी आबादी में बहुत ही छोटा नंबर है। और आप जब भी ये एग्जाम पास करके उस नंबर का एक हिस्सा बनेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, आप सही में कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में आप लोगों ने एंट्री किया है और आप वहीं पे काम कर रहे हैं। तो इसको आपके सर ने बोला, राजेश जी ने, कि और अभी हमको आउट ऑफ चार्ज लेना है, हमको ये करना है, वो करना है, वो सब ठीक है, वो तो सब चलते रहेगा। मगर अगर आप एग्जाम फेल होंगे तो कोई भी आपको आके नहीं बोलने वाला है कि यार तुमने मेरा कार्गो की डिलीवरी ली है और तुम फेल हो गए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो तो कभी नहीं होने वाला है। अगले 10-12 दिन जो भी लुधियाना के पास है, आप प्लीज उसको बहुत ही सीरियसली लें और बहुत ही मेहनत कीजिए। ये एग्जाम उतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस बहुत ही बड़ा है, और इनका जो भी इनके जो भी प्रश्न होते हैं वो भी बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल पाओगे हाँ इतना तो मुझे आता है। तो इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए और थोड़ा सीरियसली अगले 10-12 दिन में इसके ऊपर मेहनत कीजिए। इंडिया में हर रोज के करीबन 52,000 कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंडियन कस्टम्स को प्रेजेंट होते हैं एवरी डे, अराउंड 52,000 डॉक्यूमेंट्स, और वो 52,000 में से करीबन 98% आप और हम क्लियर करते हैं, कस्टम ब्रोकर्स क्लियर करते हैं। सिर्फ 2% ऐसा है जो कस्टम ब्रोकर्स क्लियर नहीं करते हैं। मगर ये 2% कौन करता है? नॉर्मली इट इज द मिलिट्री, द आर्मी, और बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो। कुछ छोटे लोग भी होते हैं जो आप और हम जानते हैं सेल्फ में क्लियरेंस करते हैं, बट 98% तो आप और हम ही क्लियर करते हैं। और ये 98% का फिगर देख के आपको महसूस होगा कि हम लोग सही में इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम अगर नहीं रहेंगे तो हर रोज के 52,000 क्लियरेंसेस नहीं हो पाएंगे। आपको भी पता है कि इंपोर्ट में कार्गो आने के पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। आपके क्लाइंट्स भी आपको बोलते हैं कि मैंने एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट दिया तो सेम डे मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता है, 1.5 दिन भी डिले हो गया तो चिल्लाते हैं। मगर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम पे क्यों चिल्लाते, क्योंकि उनको हमसे कोई उम्मीद है, कोई एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन सरकार की भी हमारे ऊपर है कि आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए, और आप जब तक ये काम अच्छी तरह से करेंगे तो इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी। तो यू मस्ट रिमेंबर कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपको अपना जो भी जॉब है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको आप प्लीज लाइटली मत ले। हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, अरे ठीक है हो जाएगा, करता हूं, मेरे अलावा कौन करेगा, अरे यार कर रहा हूं ना, वो दिमाग चाट रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और हमें अपना रोल बहुत ही जवाबदारी के साथ उसको निभाना पड़ेगा। सेकेंडली, अभी तक क्या होता था, जब तक इतना सारा फैसिलिटेशन नहीं आया, हम लोग ऑफिसर के पास जाते थे, उससे कोई अच्छा रिलेशनशिप रखते थे, वो कभी अपने से कोई एक्सपेक्टेशन रखता था, हम एक्सपेक्टेशन पूरी भी करते थे। ये जमाना अभी नहीं रहेगा।
अभी सब कुछ कंप्यूटर्स पे होता है, फेसलेस में चला गया है, रिस्क मैनेजमेंट में चला गया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक नॉलेज इंडस्ट्री होगी। आपको समझ में आना चाहिए कि बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री क्यों होती है, हम लोग क्यों फाइल करते हैं, उसका असेसमेंट क्यों होता है, एग्जामिनेशन क्या है और क्यों हो रहा है, आउट ऑफ चार्ज, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ड्यूटी पेमेंट, ड्यूटी क्रेडिट, स्क्रिप्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको वो समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या, क्यों हो रहा है और मेरा इसमें रोल क्या रहेगा। पहली चीज, इंडिया में कस्टम ब्रोकर्स को एक लाइसेंस मिलता है। अगर आपके पास कस्टम ब्रोकिंग करने का लाइसेंस नहीं है तो आप इंडिया में कस्टम ब्रोकिंग का काम नहीं कर सकते। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 146 है जो दो चीजें कहता है। पहला कि इंडिया में किसी को भी कस्टम ब्रोकिंग का काम करना होगा तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और दूसरा कि बोर्ड माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाएंगे। रेगुलेशंस का मतलब होता है नियम, और वो नियम आपको एज अ कस्टम ब्रोकर फॉलो करने पड़ेंगे। आगे ये ऐसे कहता है कि इसके लिए जिसको भी काम करना है उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसकी एग्जाम रहेंगी। एग्जाम के बाद आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, आपके ऊपर कोई कंडीशंस आएंगी, और अगर आप वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक भी हो सकता है। सो यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट द कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड्स, तो आपका जो ओरिजिन है वो इंडियन कस्टम्स एक्ट से है, और एक्ट कहता है कि इंडिया में जो भी है उसको लाइसेंस होगा कस्टम ब्रोकिंग का काम करने के लिए। बोर्ड रेगुलेशंस बनाएंगे, और रेगुलेशंस में दूसरी चीजों के साथ आपका क्वालिफिकेशन लिखा होगा, आपके एग्जाम के बारे में लिखा होगा, आपके ऊपर जो भी कंडीशंस है वो लिखे होंगे, और अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, आप भी सस्पेंड हो सकते हैं, राइट। सो तीन चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक है एग्जामिनेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट माने कि आपकी जो नौकरी है वो, और तीसरा ऑब्लिगेशंस माने कस्टम ब्रोकर को कस्टम ब्रोकिंग करने के लिए कौन से ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्लिगेशंस पे जाते हैं। ऑब्लिगेशंस जो कस्टम ब्रोकर के ऊपर है वो करीबन 17 ऑब्लिगेशंस है, और आपको एवरी जॉब के लिए ये 17 ऑब्लिगेशंस फॉलो करने हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने यार मेरे आज 10 डॉक्यूमेंट 8 में मैंने फॉलो कर दिया, 2 में मैंने नहीं किया। ऐसे नहीं होता है। आपने अगर 10 फाइल किए तो 10 में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये वर्ड है ऑब्लिगेशंस, बट एक्चुअल वर्ड है कि आपको कंपल्सरीली ये करना ही है। और इसमें अगर आपने कुछ गलती कर दी या आपसे कुछ रह गया या कुछ और हो गया तो कस्टम्स आपको फाइन कर सकता है, आपको पेनल्टी लगा सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, और दूसरे किसी एक्ट के नीचे आप पे दूसरी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और एंड ऑफ द स्टोरी आप ही का नुकसान होने वाला है। 17 ऑब्लिगेशंस है। आप एक या दो बार वो पढ़ेंगे, थोड़ा सिंपल रख के। ये प्रेजेंटेशन भी सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ईमेल रजिस्टर किया है उनको हम भेज देंगे, राजेश सर को भी भेज देंगे, तो राजेश सर आप लोगों को दे सकते हैं। ये 17 जो रेगुलेशंस है उसको आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये एक बार के लिए नहीं है। आपने जी कार्ड की एग्जामिनेशन पास कर ली तो फिर आपको जिंदगी भर ये 17 फॉलो करने हैं।
वीरेंद्र सर, राजेश सर, हम लोग सब ये 17 को एवरी डे फॉलो करते हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि कस्टम ब्रोकर के यहाँ काम करने के लिए हमारे पे कोई ऑब्लिगेशंस रहते हैं जो हमें कंपल्सरीली फॉलो करने हैं। ठीक है, सो देयर आर 17, वो आपको पढ़ने हैं, आपको देखना है कि ये कौन से 17 है। सिर्फ केवाईसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 में से सिर्फ एक है केवाईसी, तो बाकी के 16 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दूसरा, अगर आप रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो रेगुलेशंस में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि किसी ने भी बदमाशी की या गलती की या उससे कुछ गलत हो गया तो जी कार्ड होल्डर भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कहीं नहीं है कि जी कार्ड होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब भी आप जी कार्ड की एग्जाम पास करेंगे तो आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो और जी कार्ड होल्डर को कस्टम हाउस सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, फाइन लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, और दूसरे एक्ट्स और सेक्शंस के नीचे उसके ऊपर और कोई भी कार्रवाई कर सकता है। सो बी वेरी क्लियर कि ये जो रिवोकेशन और मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो आपके सेट के या आपकी कंपनी के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। Once you pass the G card examination, you are equally responsible for everything. Okay, so please understand that very clearly. फिर आता है आपकी जॉब। आपकी जॉब में ऐसा है कि आपकी कंपनी जिसके पास एक लाइसेंस, ब्रोकर का लाइसेंस है, वो आपको एम्प्लॉय कर सकता है। आपके पास आधार कार्ड चाहिए और आप 10+2 या उससे ज्यादा आपकी पढ़ाई का सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है, गलती होती है सबकी कि जी कार्ड एग्जामिनेशन फील्ड स्टाफ के लिए है। जी कार्ड एग्जामिनेशन फील्ड स्टाफ के लिए नहीं है। ऑफिस के स्टाफ भी जी कार्ड की एग्जाम दे सकते हैं। आपकी ऑफिस में लड़कियां काम करती है, वो भी जी कार्ड की एग्जाम दे सकती है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो बंदे कस्टम हाउस जाते हैं उन्हीं के लिए एग्जाम है। ये एग्जाम उनके लिए है जो कस्टम ब्रोकर के यहाँ जॉब कर रहे हैं, कस्टम क्लियरिंग का काम कर रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड है और कम से कम 10+2 की पढ़ाई की है उन्होंने। सो बी वेरी क्लियर कि ये जी कार्ड की एग्जामिनेशन सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज है जहां पे ऑफिस स्टाफ ने जी कार्ड की एग्जाम दी हुई है, और सभी चाहेंगे, जो भी अच्छी एजेंसी है वो यही चाहेंगे कि मेरे ऑफिस के स्टाफ को भी मुझे जी कार्ड की एग्जामिनेशन में बैठने देना चाहिए। राइट, सो आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे एग्जाम पास करने के लिए। आपकी ऑफिस ने अप्लाई किया या आपने एज कार्ड लिया, उस दिन से आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो माने लुधियाना कस्टम्स ने एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं किया तो आपकी अटेम्प्ट नहीं गिनी जाएगी, मगर लुधियाना कस्टम्स ने अनाउंस किया एग्जाम, या किसी भी कस्टम हाउस ने अनाउंस किया और आपने फॉर्म भर दिया, तो उसको अटेम्प्ट गिनेंगे। तो आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ओके, अगर आप 4 बार फेल हो जाएंगे तो आपको ये लाइफ में कभी भी जी कार्ड नहीं मिलेगा, और आपको शांति से ये इंडस्ट्री छोड़ के चला जाना चाहिए अगर आप 4 अटेम्प्ट में जी कार्ड की एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि आपकी एक रिटन एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब रेगुलेशंस में लिखा है। मैंने तो सिर्फ रेगुलेशंस में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको निकाल के आपके सामने रखा है। सो आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, जो डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर आपके कस्टम हाउस के, आपके जोन के होंगे, जो उसको अरेंज करेंगे।
कुछ कस्टम हाउसेस इसके ऊपर जाके ओरल एग्जाम भी रखते हैं। ओरल एग्जाम रखना गलत नहीं है, ओरल एग्जाम रखना, ये लोग रेगुलेशंस के बाहर नहीं जा रहे, मगर रिटन एग्जाम को वो किसी भी चीज के साथ ऐड कर सकते हैं, मगर रिटन एग्जाम आपकी वो लोग लेंगे। आपका सिलेबस क्या है, ये जो ग्रीन में लिखा है वो आपका सिलेबस है। और सिलेबस में ये क्या कहते हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए कस्टम एक्ट के प्रोविजंस के, कस्टम एक्ट के प्रोविजंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज गुड्स और बैगेज के लिए है, दोनों के लिए है। तो बैगेज आप अगर नहीं भी हैंडल कर रहे हो तो भी आपको बैगेज तो आना चाहिए, और गुड्स के अंदर पोस्ट भी आ गया, गुड्स के अंदर कुरियर भी आ गया। तो आपको इसके जो भी रेगुलेशंस है आने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं लुधियाना आईसीडी में या कहीं और छोटे से लोकेशन पे बैठा हूं तो वहां पे जितना काम होगा उसी की एग्जाम होगी। सिलेबस जो आप ग्रीन में स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रेगुलेशंस में लिखा है, और वंस यू पास द एग्जामिनेशन आपको एक फोटो आइडेंटिटी मिलेगी, आपका फोटो रहेगा और जी कार्ड, आपके कस्टम लोकेशन की डिटेल्स रहेगी। वो जी कार्ड आपका है, आपकी कंपनी का नहीं है, आपका है, क्योंकि एग्जाम आपने पास की है। सो बी क्लियर ऑन दिस। अभी जिसको भी कस्टम ब्रोकर बनना है उसके लिए अलग एग्जाम है जिसको हम लोग एफ कार्ड एग्जाम कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि एफ कार्ड की एग्जाम क्या होती है। एफ कार्ड की एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा है एफ कार्ड की एग्जाम का सिलेबस। अगर ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी है उसका मैं प्रिंट आउट निकालता हूं तो वो कम से कम 3500 पेजेस होता है। तो जो भी एफ कार्ड के लिए एग्जाम के में बैठता है उसको इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये भी सिलेबस जो है वो बंधा हुआ सिलेबस नहीं है, वो खुला सिलेबस है, माने इसको छोड़ के भी ये कुछ भी पूछ सकते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं है कि इनको इसी के बारे में पूछना है। और आप जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उसका सिलेबस सेम है, क्योंकि वो भी इतना ही पढ़ता है कि गुड्स को कस्टम्स में से क्लियर कैसे करते हैं, तो आप भी वही पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप और मैं दोनों स्कूल में गए थे, हम लोगों ने मैथ्स 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स भी हम लोग पढ़े थे, हिस्ट्री भी पढ़ा था, ज्योग्राफी भी पढ़ा था। बट होता क्या था कि हम लोग जैसे जैसे आगे जाते थे वैसे वो सिलेबस और डीप में अंदर जाना पड़ता था और डिटेल में हम लोग पढ़ते थे। अगर मैं रफ कंपैरिजन करूं तो जी कार्ड एग्जामिनेशन कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, और वही सब्जेक्ट पे पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्जाम होता है वो एफ कार्ड का होता है। सो योर सिलेबस इज द एफ कार्ड सिलेबस। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं पता है। हाँ, आपको इतने डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है, मगर जितना भी एफ कार्ड का सिलेबस है वो आप पे कंप्लीटली अप्लाई करता है। और कुछ कस्टम हाउसेस ने बिसाइड्स कस्टम्स इंग्लिश की भी टेस्ट ली है इन द पास्ट, सिंपल मैथमेटिक्स विदाउट अ कैलकुलेटर। सिंपल मैथमेटिक्स की अगर किसी ने बोला कि इसकी ड्यूटी 8% प्लस सो एंड सो प्लस सो एंड सो प्लस 18% जीएसटी है तो इसकी इफेक्टिव ड्यूटी क्या हो गई, और मेरी असेसेबल वैल्यू 2,60,000 है तो उसकी ड्यूटी क्या हो गई, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं इन द पास्ट। एंड लास्टली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कि प्रेसिडेंट क्या है, कौन सी कंट्री में कोरोना क्या है, ये क्या है। सो इट इज नॉट कि ये लोग सिर्फ कस्टम्स को रिस्ट्रिक्ट करके ही आपको सवाल पूछेंगे,
इन्होंने बहुत सारे कस्टम हाउसेस ने ऐसे भी बोला है कि आपको अमेंडमेंट कराना है तो आप एसी को एक लेटर लिख के दो कि मुझे इतना अमेंड करना है. सो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑन इंग्लिश कि आपको बेसिक लेटर लिखना भी आना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज योर सिलेबस फॉर यू. आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, जिनको हम लोग इंटरनेशनली बोलते हैं मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स. माने कोई भी सीमा है, इंटरनेशनल सीमा है, उसको क्रॉस करना, उसको मूवमेंट बोलते हैं. सो मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स इज वेयर यू आर क्रॉसिंग एन इंटरनेशनल बैरियर. ठीक है. इंडिया में आप जो काम कर रहे हैं तो आप 4 जनों का काम एक साथ में देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं. शायद आपने बैठ के कभी सोचा नहीं है कि मैं 4 लोगों का काम एक साथ देख रहा हूं. पहले आता है कस्टम्स, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माने आप जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके सामने पैसे आने चाहिए, बीआरसी. आप जो भी पैसे बेचते हैं उसके सामने कार्गो आना चाहिए. और रिजर्व बैंक किसके थ्रू काम करता है? अलग अलग बैंक्स के थ्रू. और आप लोग अलग अलग बैंक्स को कैसे जानते हैं? ऑथराइज्ड डीलर के नाम से. आप एडी कोड करते हैं तो जो एडी कोड होता है वो रिजर्व बैंक अपने ब्रांचेस को देता, अपने बैंक्स को देता है. तीसरा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. आप सभी जानते हैं कि कोई आइटम प्रोहिबिटेड होगी, कोई रिस्ट्रिक्टेड होगी, ईपीसीजी होगा, एमईआईएस होगा, एडवांस लाइसेंस होगा. ये सब आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नीचे. तो आपसे उतनी उम्मीद तो रखेंगे कि बेसिक ईपीसीजी क्या है, बेसिक एमईआईएस क्या है, बेसिक एडवांस लाइसेंस क्या है, उतना तो आपको समझ में आना चाहिए. और लास्ट रेगुलेटर है अपने सभी पीजीएस, फाइटोसैनिटरी, एफएसएसएआई, स्पाइसेस बोर्ड, अपेडा, ये जो भी नाम लो आप. और आप लोग सभी इनसे इनका परिचय तो आपके पास है ही, सभी पीजीएस का. तो आप जब भी कस्टम क्लियरेंस करते हो तो यू आर फॉलोइंग 4 रेगुलेटर्स. रेगुलेटर कौन होता है? जो आपको बोल सकता है कि तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा और इसी तरह से होगा, और इस तरह से नहीं होगा तो मैं तुम पे एक्शन ले लूंगा. तो आप आज भी 4 रेगुलेटर्स का काम तो हर रोज देखते हैं. ऑल द 52,000 डॉक्यूमेंट्स जो फाइल होते हैं ये 4 के थ्रू तो जाते ही हैं. इनके अलावा होंगे कोई, मगर ये 4 तो मिनिमम है. तो आपको ये चारों क्या करते हैं वो भी उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए आपको. कस्टम्स क्या है? कस्टम्स तो एक पड़ाव है, एक बैरियर है, एक दीवार है, जो दीवार को आपको क्रॉस करना है. और जो आप क्रॉस करते हैं उसको कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं. जो भी माल आता है वो कस्टम में आके जमा होता है, आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको बाहर लेके जाते हैं. सो दैट इज कस्टम क्लियरेंस. और कस्टम्स क्या है? कस्टम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार का, जहां पे वो बोलते हैं कि देखो इंडिया के दरवाजे पे मैं खड़ा हूं, मुझे पूछ के अंदर जाओ, मुझे पूछ के बाहर जा सकते हो. और मुझे पूछने की जो सिस्टम है इंपोर्ट की, उसको बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं. आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करें, सब डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा दीजिए, मुझे जितने भी परमिशंस मेरे से लेनी है वो सब लगा दीजिए. अगर मुझे लगा कि ये सब सही है मैं आपको जाने दूंगा, सही नहीं लगा तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा. और वही एक्सपोर्ट साइकिल पे होता है. सो इतना बहुत ही सिंपल होता है कि कस्टम्स एक पड़ाव है, एक बैरियर है, एक दीवार है, मुझे उसको क्रॉस करना है. और जो क्रॉस करने की सिस्टम होती है उसको हम लोग कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं. राइट? सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. दूसरा, कस्टम्स अकेला क्या करता है? कस्टम्स का काम सिर्फ कार्गो चेक करना नहीं है. कस्टम्स का काम सिर्फ आपसे ड्यूटी लेना नहीं है. कस्टम्स का काम है 8 उनके जॉब फंक्शंस हैं. ठीक है? तो ये 8 जॉब फंक्शंस जिस दिन आप अच्छी तरह से समझ सकोगे,
आपको तुरंत लगेगा कि कस्टम क्लियरेंस तो बहुत ही सिंपल है। माने कोई भी चीज होती है, अगर आप ऊपर से उसको देखोगे और आप उसको समझ सकोगे, देन यू विल फाइंड कि कस्टम क्लियरेंस या जी कार्ड एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है। आप उसको एक बार ऊपर से देखने की कोशिश नहीं करोगे तो आप हर टाइम कंफ्यूज्ड ही रहोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तो इतना याद रखिए कि 4 रेगुलेटर्स हैं, चारों के इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, चारों एक साथ काम करते हैं, और जी कार्ड की एग्जामिनेशन के लिए मुझे ये चारों के बारे में मुझे आना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, राइट। इससे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कस्टम्स एक्ट ये आपको आना ही चाहिए। कस्टम्स एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, उसको याद कैसे करते हैं, वो वीरेंद्र सर आपको समझाएंगे, बट कस्टम्स एक्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है कि कस्टम्स किसको कंट्रोल करता है। कस्टम्स लोगों को कंट्रोल करता है, कस्टम्स कार्गो को कंट्रोल करता है, और कार्गो जो चीज लेके आती है उसको कंट्रोल करता है। माने शिप होगी या ट्रेन होगी या ट्रक होगी या एयरक्राफ्ट होगा, उसको कंट्रोल करते हैं पानी पर। फिर बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, कैसे फाइल होती है, कब फाइल होती है, बिल ऑफ एंट्री के सेक्शंस कौन से हैं कस्टम एक्ट के अंदर, और बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स कौन सी है, वो आपको आना चाहिए। असेसमेंट क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, वो आपको असेसमेंट आना चाहिए। अगर आप कस्टम्स एक्ट देखेंगे, कस्टम्स एक्ट सेक्शन 2 डेफिनेशंस है, और अगर आप असेसमेंट का डेफिनेशन देखेंगे वहां पे जाके, तो उसमें आप देखेंगे कि असेसमेंट की 6 चीजें हैं। तो आपको वो 6 की 6 चीज आनी चाहिए कि ये कौन सी 6 चीज है। सो दैट इज असेसमेंट। और कस्टम ड्यूटीज आप समझते हैं, कौन सी टाइप की ड्यूटी होती है, कितनी ड्यूटी होती है, क्यों होती है, सेफगार्ड क्यों लगता है, एंटी डंपिंग क्यों लगता है, एजुकेशन सेस क्यों लगता है, और उसके बेसिक कैलकुलेशंस। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी आपको आता ही है, मगर आपको वो सीखना पड़ेगा। और ऑडिट, ये जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट होता है, वो ऑडिट क्या होता है और कैसे होता है। फिर ये तो अलग अलग ड्यूटीज है जो आप समझेंगे। फिर ईडीआई क्या है, आईसीईएस क्या होता है, आइस गेट क्या होता है। आईसीईएस और आइस गेट दो अलग चीजें हैं, दे आर नॉट द सेम। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो उसके वो आपको समझ में आना चाहिए कि आइस गेट क्या है, आईसीईएस क्या है, ईडीआई के अंदर क्या आता है। फिर सिंगल विंडो, आप और हम सभी अभी सिंगल विंडो में काम करते हैं। तो सिंगल विंडो क्या है, कब से इंप्लीमेंट हुआ, और कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है। फिर सिंगल विंडो का इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, इन्होंने क्या किया है, आप कैसे फाइल करोगे, उसको कैसे करोगे। आप पीजीएस का क्लियरेंस भी ऑनलाइन लेते हो, वो भी सिंगल विंडो के नीचे। आप एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट फाइल करते हो कस्टम्स में, कस्टम्स उसको रिजर्व बैंक में डिटेल्स भेजती है, कस्टम्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेक कर लेती है, कस्टम्स पीजीए को भेजता है, ये लोग वापस इनको भेजते हैं कि ठीक है चलो इसको जाने दो या इसको रोक दो। तो वो सब कैसे होता है वो आपको समझना है। एक इंडिया में बहुत ही अच्छी चीज है कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। हम लोग सब सीसीआर वर्ड यूज करते हैं, हम लोग सब ये सीसीआर वर्ड समझते हैं। तो सीसीआर क्या होता है, और वो मैं एडवांस में मैं उसकी डिटेल्स कहाँ से जान सकता हूँ, कहाँ से मुझे वो डिटेल्स मिलेगी। आरएमएस सभी ने सुना है, मगर आरएमएस है क्या और कैसे उसको बनाया गया है, उसका वो आपको आना चाहिए। फिर वेयरहाउसिंग, कस्टम्स में असेसमेंट, आउट ऑफ चार्ज, ड्यूटीज के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है वेयरहाउसिंग। और पिछले 2 साल में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं वेयरहाउसिंग में, और एक बड़ा चेंज है वो मूवर वाला MOOWR 2019। तो उसके बारे में भी यू हैव टू नो एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। फिर क्लासिफिकेशन, कोई भी कस्टम ब्रोकर होता है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है कि उसको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। आप पुराने बहुत सारे कस्टम हाउसेस के एग्जाम पेपर्स देखेंगे तो उन्होंने चैप्टर हेडिंग देके पूछा है कि ये कमोडिटी इसके अंदर आती है या नहीं आती है, तो उसका इंडेक्स कैसे पढ़ते हैं और उसको कैसे याद रखते हैं वो भी वीरेंद्र सर आपको बताएंगे। बट क्लासिफिकेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर स्टडीज। कितने डिजिट्स है और हर एक डिजिट का ब्रेकअप कैसे होता है, इंडिया में कितने चलते हैं, इंटरनेशनली कितने चलते हैं, वो भी आता है इसके अंदर। वैल्यूएशन में इंडिया के पास 2 रूल्स हैं, इंपोर्ट वैल्यूएशन, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन। रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है, रिजेक्शन क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है, दे बेसिक क्वेश्चंस। ये कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं है। आप भी जब भी कस्टम हाउस में जाते हो, असेसमेंट कभी अप्रेजर के साथ बात करना होता है, सुपरिंटेंडेंट के साथ, तो वो आपको पूछता है ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, ये क्या है, आपको असेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशंस कैसे होती है, इंपोर्ट साइकिल में CIF, एक्सपोर्ट साइकिल में FOB। इंपोर्ट की प्रोसीजर्स आपको समझनी होगी, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स, कुरियर एंड पोस्ट कस्टम क्लियरेंसेस, एग्जम्पशंस क्या होता है, रेमिशन, री इंपोर्ट क्या है, री एक्सपोर्ट क्या है, ड्यूटी डिमांड क्या होती है, इंटरेस्ट कभी लगेगा, कितने % लगेगा, कस्टम आप पे लगाएंगे कि आप कस्टम पे लगाएंगे, आप कस्टम से रिफंड मांगते हो तो उस पे भी कस्टम को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कितने % का होगा, कभी आप इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकोगे। ड्रॉबैक 74 to 76, ऑफिसर्स के पावर्स क्या होते हैं एनफोर्समेंट के, पेनल्टीज क्या होती है, फाइन क्या होता है, कॉन्फिस्केशन क्या होता है, अपील्स एंड रिव्यू की AC का ऑर्डर है तो अपील में आप किसके पास जा सकेंगे, कमिश्नर का ऑर्डर है तो आप किसके पास जा सकेंगे। सो दैट इज अपील एंड रिविजन फॉर यू। कस्टम क्लियरेंस दोबारा आपके लिए बहुत ही सरल चार्ट में रखने की कोशिश की है यहाँ पे कि कस्टम क्लियरेंस 3 टाइप के होते हैं, होम कंजम्पशन, वेयरहाउसिंग और एक्सबॉन्ड। मगर उसके साथ ढेर सारी चीजें खुल जाती है और आपको ये सभी चीजें समझनी पड़ेगी। रीअसेसमेंट, MEIS, EPCG, EODC क्या होता है, BRC क्या होता है, SVB क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, ऑडिट क्या होता है, रिजर्व बैंक के जो भी नियम है, बेसिक नियम्स, वो तो आपको समझने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन सी चीजें आती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसे पढ़ते हैं कि एक ओवरव्यू समझते हैं, फिर पॉलिसी समझते हैं, फिर SEZ, EOU, FTWZ, आपके जो भी इंसेंटिव स्कीम्स है, प्रमोशन स्कीम्स है, वो सब पॉलिसी में चले जाते हैं। फिर आप लोग कर ही रहे हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, कैरोटर के रूल्स क्या है, और अभी पिछले 5-6 साल से जो आया है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। फिर इनको टर्म्स आता है, इनको टर्म्स इज CIF, FOB, CFR, CIP जो भी है वो इनको टर्म्स क्या होते हैं, इनको टर्म्स को असेसेबल वैल्यू तक कैसे लेके जाते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, उसको कैसे करते हैं, बेसिक सिंपल क्वेश्चंस ऐसे ये लोग आपसे पूछ सकते हैं। वीरेंद्र सर को इनवाइट करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आगे लेके जाने के लिए, और उसके बाद we will do a question answer session. Yeah, Viren sir. थैंक यू वेरी मच समीर सर। और समीर सर ने काफ़ी डिटेल में हमको समझाया कि कौन सा कैसे इतना वास्ट है अपना कस्टम्स का जो पूरा डोमेन, और इतने सारे इसमें अलग अलग क्षेत्र है जिसमें हमने समीर सर ने काफ़ी अपने को विश्लेषण दिया इसमें। और जैसे
मैं जानता नहीं हूँ कि जैसे लुधियाना में कैसे एग्जाम होती है, उसके बारे में राजेश सर से मैं पूछ लूंगा। लेकिन मैंने एक 50 मार्क का पेपर बनाया अभी चालू में, तो मैं समझा कि या 100 मार्क का पेपर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, कि उसमें 100 मार्क की जो पेपर है वो उसको मैं कैसे उसको डिवाइड करूँ। तो जैसे समझ लिए कस्टम्स लॉज एंड प्रोसीजर हो गया 20 मार्क, लॉ एंड प्रोसीजर। जनरल नॉलेज जो है आपका उसके 10 मार्क हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 मार्क, और मैथमेटिक्स के जो सिंपल लैंग्वेज है उसके 10 मार्क हो सकते हैं। और बाकी जो 50 मार्क है ये एक मैंने 50 मार्क के हिसाब से मैंने बनाया है। और दूसरा है एक 50 मार्क का बनाया कि मैंने इसमें पहले मैंने बोला कस्टम लॉ एंड प्रोसीजर, ये एक विभाजन किया। दूसरा समझो 40 मार्क का मैंने बनाया कस्टम्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो आप फील्ड में जाते हैं, आप आईसीडी जाते हैं, या आप ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, या आप कस्टम जो क्या बोलते हैं कस्टमर सर्विस के सदस्य हैं आप, या कोई भी है जो कस्टमर का लगता जो है उसमें फील्ड सब प्रैक्टिस फील्ड है। बाकी समझो मैंने और 10 मार्क डाल दिए लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग करके मैंने 100 मार्क्स का एक सॉर्ट ऑफ मेरे मेरे हिसाब से मैंने तुलना की। तो मैं आपको आज बोलूंगा कि हाउ टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स टू स्टडी। तो मैं ज़्यादातर रेगुलेशन एफ यानी एफ कार्ड के बारे में मेरे अनुभव रहा है, जो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा है मुंबई में, मुंबई क्षेत्र में। और एफ कार्ड की जो जैसे सर ने बताया तुलना की जाए तो इतना सारा ढेर सारा मटेरियल निकलेगा। तो जी कार्ड एग्जाम जो आप अभी दे रहे हैं, तो आप बताएं मुझे कि ये पेपर जो रहता है राजेश सर, वो किस तरह का रहता है? जैसे जैसे मैंने अभी दर्शाया ऐसा पेपर है, या वो एमसीक्यू बेस्ड है, कि कैसा रहता है नॉर्मली? सर ये कॉम्बिनेशन है, हर टाइम टेक्निकल में अलग अलग ऑफिसर्स रहते हैं और अलग अलग तरीके से सेटअप करते हैं। अभी तक एमसीक्यूज का पेपर नहीं आया। लास्ट पेपर एमसीक्यूज था, मतलब सिलेक्शन करना था आंसर्स को। तो लास्ट वाला जो है कॉम्बिनेशन ही रहता है, कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, कुछ पैराग्राफ रहते हैं, कुछ जैसे अपने ड्यूटी का बोला या एचएसएन क्लासिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, यानी लॉ एंड प्रोसीजर एंड लॉ एंड प्रैक्टिस मिला के 100 मार्क के पेपर रह जाते हैं, ऐसे आप मैं समझा? जी सर। और उसका जो आगे है वो मतलब कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ एमसीक्यूज रहते हैं। ओके, सो इट इज अ मिक्स बैग। एक मिक्स है। तो जी कार्ड एग्जाम के लिए जैसे हम एसएससी पास करते हैं, तो एसएससी पास 10वीं कक्षा पास करने के लिए हमको कक्षा 1 से 9 तक भी हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। सो जी कार्ड एग्जामिनेशन इज समवेयर ऑन द हायर साइड। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप जी कार्ड एग्जाम पास करके आप एफ कार्ड के जो आपके अपनी कंपनी है आपकी, या जहां आप काम करते हो, वहां पे आपकी गुणवत्ता या आपकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी, और आपको एक अलग दर्जे का एक रोल दिया जाएगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो आपको खुद को एक जैसे सोचना है कि कितना मैं पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, मुझे ये लाइन में एग्जाम पास करनी है और मुझे आगे आना है, और आज मैं जी कार्ड पास करता हूं, आगे मैं शायद एफ कार्ड भी एग्जाम पास कर दूं। ऐसे आप एक लक्ष्य लेके चलेंगे तो ऐसा मेरा मानना है, और इसी तरह आप पास हो जाओगे। तो हाउ टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी एन इम्पोर्टेंट टिप्स। तो कस्टम एक्ट जो है, आप क्या कोई भी सदस्य जो सामने बैठे हैं कोई भी हमको बोल सकते हैं कि कस्टम एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? मैं एक इंटरैक्टिव कर रहा हूँ। बोलो। 163 है सर। जी 163। ओके, वेरी क्लोज। कितने चैप्टर हैं? 98 सर। नहीं, चैप्टर, कस्टम एक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको टेस्ट नहीं कर रहा हूं, हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए, कस्टम एक्ट में 161 सेक्शंस हैं, 161।
और ये 161 जो सेक्शंस है उसमें 17 चैप्टर्स में 17 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 करके टोटल 17 चैप्टर है। उसमें चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो है, जो मेरे हिसाब से जो चैप्टर 5 है उसको मैं हार्ट एंड सोल बोलता हूं, यानी हृदय और सोल। व्हाई? बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द चैप्टर वेयर वी हैव लेवी ऑफ ड्यूटी, जो हमको ड्यूटी लेवी करनी। तो ये चैप्टर हमको बताएगा कि ड्यूटी कहां से लेवी करनी है। तो आप बोलोगे कस्टम टैरिफ एक्ट से। फिर ये चैप्टर हमको थोड़ा बहुत जानकारी देगा वैल्यूएशन पे। फिर हमको दिखेगा व्हाट इज रिफंड, व्हाट इज शॉर्ट लेवी। समझो आपने कम ड्यूटी भरी है तो क्या होता है। फिर चैप्टर 6 में आएंगे तो कन्वेंस का आएगा कि जब जहाज से माल आता है, फिर आईसीडी आता है तो कौन सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 7, जो बोलता है बिल ऑफ एंट्री कैसे आप फाइल करोगे, आप शिपिंग बिल कैसे फाइल करोगे, क्या क्या डेक्लेरेशन होंगे उसमें, उसकी एक एक डेक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। हम जब बिल ऑफ एंट्री आप जब फाइल करते हो आइस गेट में, आप पहले चेक करते हैं सब बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप पुटअप करते हो बिल ऑफ एंट्री, तो यू सब्सक्राइब टू अ डिक्लेरेशन अबाउट द ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। यू सब्सक्राइब टू अ डिक्लेरेशन कि भाई हाँ, जो भी मैंने इसमें दिया है सही है और कोई गलत नहीं है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अभी मैंने अपलोड कर दिया आइस गेट में ई संचित के माध्यम से, और मेरी बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो गई या मेरा शिपिंग बिल जनरेट हो गया। तो वो डॉक्यूमेंट है, जब आप हाथ में लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कहने का मतलब है, जब आप स्टडी करते हो तो एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर को आप ध्यान से पढ़े, वो क्या कहना, वो सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझे कि भाई चलो ये खास करके चैप्टर 5 6 7 जो है। फिर ड्रॉबैक सर ने बताया, या लेवी ऑफ ड्यूटी, द क्लियरेंस ऑफ कन्वेंसेस, ये और ये सब चैप्टर काफी मायने रखते हैं। व्हाट आर प्रोहिबिटेड गुड्स, दैट इज चैप्टर 4। एक एक करके आपको चैप्टर से आगे जाना है, तो आपको आइडिया आएगा कि चैप्टर सेक्शन 1 to 99A तक पूरा जो कस्टम एक्ट बना हुआ है, अभी वापस बोलता हूँ, सेक्शन 1 से सेक्शन 99A यानी ऑडिट तक की जो चैप्टर है, उसमें आप देखोगे तो ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी, ड्रॉबैक, रिफंड्स, शॉर्ट लेवी, कोस्टल गुड्स, स्टोर्स, वेयरहाउसिंग, इसके सब पूरे जो रिलेटेड जो सेक्शंस है, यानी पर्टेन टू ड्यूटी, चैप्टर सेक्शन 1 to 99 में दोहराया गया है। फिर आप सेक्शन 100 से जब क्रॉस करोगे, यानी चैप्टर 13, चैप्टर 14, 14A वगैरह, तभी आपको मालूम पड़ेगा दैट पर्टेन्स टू सीजर ऑफ गुड्स, कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन करने के पहले पेनल्टीज क्या आएंगी, उसका पेनल्टीज कौन से हिसाब से भरी जाएगी, कौन से रीजन के लिए गुड्स आपके सीज हो सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कस्टम आपको सीज करके अपने पास रख लेंगे। फिर क्या कार्रवाई होती है, व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्शन टेकन, शो कॉज नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो रहता है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहती है, वो एडजुडिकेट करेंगे, यानी एक आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाएंगे। पर्सनल हियरिंग में आपको चांस दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, आपको क्या बोलना है, कैसे क्या इश्यूज है आपका। मैंने जो गुड सीज किया है तो मैंने क्यों किया है। तो आप जानते हैं किसी ने शो कॉज नोटिस देखी है अपने सदस्य में, यहाँ पे कोई बोल सकता है व्हाट इज अ शो कॉज नोटिस? आप में से किसी ने शो कॉज नोटिस देखा हुआ है? Sir, 1 minute. All participants who have logged in from outside also, you can ask questions. I am seeing Jairam Nikalje
Lakwinder Singh, having raised their hands, do you want to ask a question? Sir has made it interactive, so you can ask a question. Because I can only see the panelist here right now, so I. तो शो कॉज नोटिस का एक्चुअली मेन अहमियत क्या है जो आप पढ़ेंगे, मैल प्रैक्टिस का वर्ड हम यूज नहीं करते हैं. शो कॉज नोटिस सेज दैट प्लीज टेल मी व्हाई आई शुड नॉट कॉन्फिस्केट योर गुड्स, प्लीज टेल मी व्हाई आई शुड नॉट लेवी अ पेनल्टी ऑन यू. इट इज गिविंग यू अ चांस कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस के हैसियत से मैंने आपके गुड्स को सीज किया है, क्या वो सही है, क्या मुझे आप पे पेनल्टी लगानी चाहिए, क्या आपके गुड्स मुझे कॉन्फिस्केट करने चाहिए. तो इट इज वन चांस गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ शो कॉज नोटिस कि प्लीज कम टू मी एंड टेल मी व्हाई आई शुड नॉट डू दिस. तो वो हिसाब से सेक्शन 100 के आगे जाएंगे तो जैसे सीजर हुआ, सीजर होने के पहले शो कॉज नोटिस इश्यू होती है, गुड्स कॉन्फिस्केट होते हैं. गुड्स कॉन्फिस्केट होने के बाद कभी कभी गवर्नमेंट, आमतौर पे गवर्नमेंट बोलती है कि चलो आप गुड्स को रिडीम कर लो रिडेम्पशन फाइन के देने के बाद. यानी उसका मीनिंग क्या होता है, पेनल्टी इज ऑन अ पर्सन यानी हम पे, एंड द फाइन इज ऑन द गुड्स. उसके बाद गवर्नमेंट ने अपील्स करके एक चैप्टर बनाया है कि चलो आप संतुष्ट नहीं है कि आपका गुड्स सीज हो गया और अभी कॉन्फिस्केट हो गया है, तो आप अपील में जाइए, कमिश्नर अपील्स, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाइए, फिर कभी कभार कोई सिचुएशन में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. ऐसे करके अपना चैप्टर अपना एक सेक्शन 100 से बनाया गया है. और जो लास्ट सेक्शन जो है जो अपना ये चैप्टर 17 उसमें मिसलेनियस है, जिसमें कस्टम ब्रोकर को कैसे लाइसेंसिंग दिया जाता है और वगैरह, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी. तो कमिंग बैक टू ये मैंने एक आपको एक छोटा सा विश्लेषण दिया है कि इस तरह से एक पूरा कस्टम एक्ट का सेक्शन 1 टू सेक्शन 161 का एक पूरा एक मैंने डाइसेक्शन करके दिया आपको. तो और भी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सेक्शन जब आप पढ़ते हो उसके साथ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहते हैं. जैसे सेक्शन 99A आपने पढ़ा, ऑडिट रेगुलेशन, sorry, section 99A talks about audit. Then you must also read what is audit regulation. कभी आपने प्रोविजनल असेसमेंट आपकी बिलो एंट्री हुई सेक्शन 18 के तहत, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक रेगुलेशन बना हुआ है जिसमें फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनली असेस्ड बिलो एंट्री रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने भी बनाया है और पब्लिश किया है. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और कस्टम एक्ट तीनों का एक इंपॉर्टेंस है ऐसे एग्जाम्स पढ़ने के लिए. क्योंकि याद रखिए ऑल फ्रेंड्स आउट हियर, जब भी आप जी कार्ड पास करोगे आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा. यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल देन व्हाट यू आर बिफोर योर रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑफ द जी कार्ड. तो इस तरह से आपको रेगुलर पढ़ना है. आप रोज का 10 सेक्शंस भी पढ़ेंगे, या सॉरी 15 सेक्शन भी पढ़ेंगे रोज के, और आप उसको समझेंगे और आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी करेंगे तो भी आप आराम से ये एग्जाम पास कर सकते हो. ये मेरा एक अनुभव रहा है. और जितना पढ़ेंगे, आपको मालूम है ये एग्जाम साल में एक ही बार आता है आपके कस्टम स्टेशन में. कोई कस्टम स्टेशन है जहां एज कार्ड वाले इतने सारे हैं और वहां पे 2-3 साल तक भी कस्टम जी कार्ड की एग्जाम नहीं हुई है. तो हमको एक साल और नहीं रुकना है. आप काम भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं. जितना आप डिले करोगे कि नहीं चलो नेक्स्ट ईयर देंगे, आज ये साल छोड़िए, हर साल आपका काम बढ़ेगा. इंडिया की तरक्की तो हो ही रही है. आप देख रहे हैं कि गए साल के मुकाबले ये साल आपको ज्यादा काम है, तो जाहिर है कि अगले साल भी आपको ज्यादा काम रहेगा. तो ये एग्जाम भी देना है, आपको पास करना है, आपको एक लक्ष्य बनाना है अपने के लिए. तो आप आज से रोज एटलीस्ट 10 to 15 सेक्शंस आप पढ़िए. ऐसे समझिए आपको कुछ नहीं आता है या कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम बैठे हैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए या आपके कोई क्वेरी को सॉल्व करने के लिए. और दूसरा अभी मैं जाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पे. ओके, जो अंकित का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बाद में सत्यम का क्वेश्चन पे आऊंगा थोड़ा बाद में. जैसे आपने जी कार्ड एग्जाम पास की, तो जैसे समीर सर ने बताया था कि अलग अलग कस्टम स्टेशन में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है.
जैसे मुंबई में लोकल कमिश्नरेट है, रिटन एग्जाम भी लेते हैं, उसके बाद ओरल एग्जाम भी लेते हैं, और दोनों में पास करना जरूरी है। मुंद्रा कस्टम स्टेशन में मैं जानता हूं तब तक सिर्फ रिटन एग्जाम लेते हैं और ओरल एग्जाम नहीं होती है। आपके कस्टम स्टेशन के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूं, तो वो मैं राजेश सर से समझ लूंगा। तो जी कार्ड एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने सबने मीट कर दी है कि चलो आप 12th से ज्यादा पास है या कोई ग्रेजुएशन है, सो यू हैव प्री क्वालिफिकेशन आपने कर दी है। तो जी कार्ड पास होने के बाद और आपका रिजल्ट आ जाएगा, समझिए मैं समझता हूं तक चलो अप्रैल 15 तक आपका रिजल्ट आ गया और आपको जी कार्ड मिल गया और आप ग्रेजुएट हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी, तो आपको 2 साल रुकना है। यानी मान के चलिए कि 15 अप्रैल 2022 में आपको जी कार्ड मिल गया और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या आप लास्ट ईयर ऑफ टीवाई बीकॉम में है या जो भी है और नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, तो आपको 2 साल तक रुकना है। तो 2024 तक आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे एज ए जी कार्ड होल्डर। तो 2025 में करीब करीब मार्च में जब जैसे नॉर्मल टाइम में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर एग्जाम रहती है एफ कार्ड की, तो 2025 में आप एलिजिबल होंगे टू गिव एन एफ कार्ड एग्जाम। दीपेश मोरियानी, मुंद्रा कस्टम में एग्जाम कभी रहता है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 2 साल पहले जब हुआ था तभी मेरे एक स्टूडेंट ने पास किया था, तभी उसने मुझे बताया था कि वहां पे रिटन एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम नहीं होता है। और जैसे राजेश सर ने बताया कि हर साल नए नए ऑफिस आते हैं, उनका खुद का एक नियम होता है पेपर बनाने का, एग्जाम कंडक्ट करने का, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा इसको आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। अभी दूसरे पॉइंट में जाऊंगा कि आपने कस्टम टैरिफ एक्ट तो खोली होगी आपके इसके लिए, तो क्या आप एचएस कोड डालते हैं आपके बिलो एंट्री में? आपको कहाँ से मिलता है वो मुझे बताएं। क्या कोई अनम्यूट होके बोल सकता है? समझो आपके कोई जो आपका नॉर्मल जो माल आया और आपको, हाँ जी, सो आई एम कमिंग टू कस्टम्स टैरिफ। राजेश सर एक मिनट, तो आपके पास कोई मटेरियल आया तो आपने उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया? कोई बता सकता है वहां से सदस्य में से? बताइए भाई, कौन बताना चाहता है? इंपोर्ट आया आपके पास कोई, तो उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हो? सर टैरिफ बोल रहे देखते हैं और उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर देखते हैं। करेक्ट। और कोई नियम होता है इसमें देखने के लिए? पॉलिसी सर। ओके, और कुछ? पीजीए तो अपना आईसी गेट ਦੇ ਵਿੱਚ देख के कह रहे हैं आइस गेट के उस पे जाते हैं कंप्लायंस वाली वेबसाइट से, वहां से सीसीआर चेक करके देखते हैं कि और क्या क्या देखना है। दैट इज एक्चुअली नॉट अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, वो तरीका सही है। मैं समझ रहा था कि आमतौर पे जो प्रीवियस जो इनवॉइस आती है या बिल ऑफ लीडिंग आती है या जो क्या बोलते हैं उसमें जो एचएस कोड लिखता है वो ब्लाइंडली लोग ले लेते हैं। क्या ऐसा भी होता है? कहते बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सही है। तो मैं आंसर जानना चाहता था आपसे। तो दरअसल क्या है कि कस्टम टैरिफ एक्ट जो इतनी मोटी बुक है या जो भी आपके पास है, जो आप आइस गेट में देखते हो, दैट इज योर गाइड, दैट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो WCO ने बनाई है। उसमें जो इंडिया में 1 to 98 चैप्टर्स हैं जैसे आप जानते हो, लेकिन WCO के अनुशासन के उनके अनुशासन में जो कस्टम टैरिफ आती है, तो चैप्टर 1 to चैप्टर 97 तक हम उसका कॉमा या उसका कुछ भी हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि WCO का मैंडेट है। वो 98 चैप्टर है, वो इंडिया के लिए खास बनाया गया है, जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है। तो चैप्टर 1 to 97 आप जब खोलोगे बुक, अपनी RK जैन की बुक है, जो भी आपके पास है, या CBIC साइट में आप देखेंगे, तो उसमें चैप्टर
वहां पे 21 सेक्शंस हैं। कौन से? कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। हर चैप्टर के ये 21 सेक्शंस, जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 होता है, हर सेक्शन में 5, 6, 7 या कोई कोई चैप्टर्स हैं। और अब जब देखोगे चैप्टर 1 खोलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि पहले सी फूड या ऐसे कुछ जो लाइव एनिमल जो भी है, फिश एक्सेट्रा से स्टार्ट होता है। यानी कस्टम टैरिफ का जो ग्रुपिंग हुआ है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के तहत, उन्होंने इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट फ्रॉम फूड टू प्रोसेस्ड फूड, देन slowly cereals, raw materials, dyes, chemicals, semi-finished goods, and then finally finished goods, chapter 84, 85 onwards. So कस्टम टैरिफ एक्ट जो है वो 1 to ऐसे ऊपर जाता है, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मैन्युफैक्चर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता गया, इसी तरह चैप्टर की ग्रुपिंग WCO ने बनाई। रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो हर एक देश के लिए अपना खुद का कायदा कानून होता है। इंडिया में 10% है या 15% है, जो भी है वो अलग है। लेकिन आपको क्या जानना है कि आपको देखना पड़ेगा कि चैप्टर में आप जब खोलोगे तो यू मस्ट रीड द सेक्शन नोट। व्हाट डज इट से कि भाई ये यहां पे ये माल नहीं आएगा, तो आपके पास समझो वो माल है, तो वो माल कहां जाएगा? वो अभी देखिए एग्जांपल देता हूं। अभी क्रिसमस का टाइम गया, तो क्रिसमस ट्री जो है वो एक कोई चैप्टर में उसका एक HS कोड दिया हुआ है। क्रिसमस ट्री जो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जो रहता है वो हरे रंग का। लेकिन जब उसमें क्रिसमस ट्री के शेप में, उसके आकार में कैंडल आता है जो हम क्रिसमस ट्री पे ऐसे लगाते हैं, so that is not classified with the Christmas tree. It is classified separately as wax. तो अभी ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? तो मैंने सेक्शन नोट पढ़ी, उसके अंदर चैप्टर नोट्स पढ़ी। चैप्टर नोट्स में लिखा था कि क्रिसमस ट्री में जो क्रिसमस कैंडल जो आती है, which is made up of wax, will not be classified here. It will go as per wax. तो ये जो लैंग्वेज बनाई गई है WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, ये लैंग्वेज आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जैसे समीर सर ने भी बताया कि आने वालों दिनों में कंप्लायंसेस, करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड द रेट ऑफ ड्यूटी, आपकी PGA के जो कंप्लायंसेस है, ये सब बहुत मायने रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो आमतौर पे मैं जानता हूं कि सब लोग प्रीवियस इनवॉइस दे के करते हैं, तो लेकिन आपको कभी देखना चाहिए कि भाई ये मेरा मटेरियल है, ये चैप्टर में पहले मैं सेक्शन नोट पढ़ूं, मैं चैप्टर नोट पढ़ूं, बाद में मैं जाऊं वहां पे। तो आपको सबको पता है कि कितने डिजिट के कोड आते हैं। कोई बता सकता है कि कितना डिजिट का कोड है? सर, राजेश सर, HS कोड में कितने डिजिट आते हैं वो बताएं। 8 डिजिट। PL पे 8 डिजिट। 8 डिजिट आते हैं। 8 डिजिट। PL पे 10 लिखे होते हैं, लेकिन टैरिफ में हमारे 8 है। आपके 8 है, तो 8 क्यों है? तो फिर 6 क्यों नहीं? हाँ जी, क्या जवाब है? नहीं सर, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं अभी बोल देता हूं। तो मैं आपको एक थोड़ा ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको आपका नॉलेज क्यों बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप कल एग्जाम देने वाले। तो WCO ने क्या बताया है कि जो WCO के जो टैरिफ की हेडिंग है वो रहेगी हेडिंग और सब हेडिंग में, जैसे सत्यम ने बताया। तो हेडिंग एंड सब हेडिंग इज 6 डिजिट्स। नाउ आप अभी मेरे सामने भी आप कस्टम टैरिफ खोलेंगे, चलो उसमें चैप्टर कॉफी का है 0901। सो 0901 इज द हेडिंग, और उसके नीचे और 2 डिजिट आएंगे सब हेडिंग, यानी वो अरेबिका ग्रेड या चिकोरी ग्रेड या एक्सप्रेसो जो भी है, अलग अलग क्या बोलते हैं, इंस्टेंट कॉफी वगैरह जो भी है, उसके वो हेडिंग और सब हेडिंग दर्शाए गए हैं। और जैसे आपने बराबर बताया 8 डिजिट, तो 7th and 8th डिजिट इज फॉर इंडिया।
वो हमारे गवर्नमेंट लेती है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए कि कौन सा माल आया, कितना एक्सपोर्ट हुआ लुधियाना से और कोई जगह से, या जालंधर से या मुंबई से कौन सा प्रोडक्ट गया। तो उस ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए 7वां और 8वां और 9वां और 10वां जो ITCHSN है, जो DGFT वाले हैं, वो देखते हैं। उनका काम है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाना। तो कहने का मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर 6 डिजिट्स हेडिंग एंड सब हेडिंग as per WCO, and this has to be followed compulsorily by India also from chapter 1 to 97 also, and also in chapter 98. तो आपको एक एक चैप्टर पे जो खास करके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको देखना है कि लुधियाना जो कस्टम्स की वेबसाइट है उसमें ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रहेंगे कि कौन सी टाइप का माल लुधियाना में आता है, लुधियाना या जालंधर या आसपास से कौन सी टाइप का माल एक्सपोर्ट होता है। तो आपको मिल जाएंगे 15, 20 या 25 अलग अलग टाइप के आइटम्स या जो भी है, उसमें खास करके ध्यान से उसमें आप देखिए उनका HS कोड क्या है। तो मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि आज ही, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, पुल योर सॉक्स अप, तो आपको आज से ही तैयारी करनी है नेक्स्ट 10 दिन के लिए, और आपको जितना हो सके आप पढ़िए। मैं आपको एक प्रोत्साहन के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपकी कैसे पढ़ा जाए सब वो माध्यम से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्यूड यू, या मैं आपको हताश करने के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ। हम बैठे हैं यहाँ पे कि आप अब एक एक करके आप पढ़ें। तो आप क्या करें, आज से 10 दिन का टाइम है आपके पास। वहाँ पे प्लीज आप जो ये कस्टम एक्ट जो है 15 सेक्शंस करिएगा, साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़िए। आपके कस्टम हाउस के जो 3-4 साल के कुछ पेपर रहेंगे वो भी आप सॉल्व करिए और देखिए आपको कितना आता है नहीं आता है। कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। और खास करके जैसे मैंने बताया है तो ये HS कोड भी आप देख लीजिए। जब तक राजेश सर मैं समझता हूँ जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरिफ जो है, जो 6 रूल GRI के, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं कि नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो नहीं पूछते हैं। तो ये रूल्स ऑफ GRI, जैसे हम जो कस्टम टैरिफ में इतने हजारों लाखों संख्या में या करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे कस्टम टैरिफ में बिठाया जाए, क्या चैप्टर 28 में आएगा या 30 में आएगा, 32 में आएगा, वगैरह वगैरह जब होता है तो उसके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरिफ बनाए गए हैं। 6 रूल्स आर देयर, और उसमें आपको वो रूल्स पढ़ने को आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसी तरह से अकीन, मोस्ट अकीन या लैटर द बेटर, तो ये हिसाब से आपको ग्रुपिंग करना है। तो मैंने कॉफी का आपको एग्जांपल दिया क्योंकि वो सीधा चैप्टर 0901 में बैठ जाता है। तो आपको ये सब सीखने के लिए और जानने के लिए आवश्यक है कि आप आज से सब पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, और आपके जो एम्प्लॉयर है या आपकी खुद की कंपनी है जो भी है, उनको भी पता है कि ये एग्जाम की अहमियत क्या है और आप कितने कैसे इसमें जितने ज़्यादा पढ़ेंगे इतना अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट इज टेस्टिंग योर नॉलेज। आपका नेबर जो भी पास करेगा नहीं पास करेगा उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है, उसमें आप वो फेल हो गया, वो पास हो गया और आप फेल हो गए, तो आपको कुछ ज़्यादा उसमें कुछ खुशी तो नहीं होने वाली है। और मान के चलिए आपके कस्टम स्टेशन का रिजल्ट 50% है हर साल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, सो यू हैव टू बी 50% बेटर देन द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। So you have to study like this. So you have to be better than those. If 100 people are appearing, तो 50 लोग से ज्यादा आपको इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि आप वो 50 में आपका नंबर आ जाए। इसी तरह से आप पढ़ाई करिएगा और ये एग्जाम पास करना। तो जितना मैं समझता हूँ, जैसे मैं आपको मैंने मेरे तरफ से एक प्रेसी के तौर से दे दिया है, और आपको अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बिफोर वी ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो सर ने बताया। आप प्लीज एक कस्टम्स एक्ट लीजिए
और उसका जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स हर रोज एक बार पढ़ लेना, तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि कितने सेक्शन, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। क्योंकि वो लोग कैसे सवाल पूछते हैं कि आप वैल्यूएशन कौन से सेक्शन में करते हो, बैगेज कौन से सेक्शन में आता है, वेयरहाउसिंग कौन से सेक्शन में आता है। तो अगर आप इंडेक्स को हर रोज पढ़ेंगे तो आपको ब्रॉडली पता चलेगा कि अच्छा मेरा ये वेयरहाउसिंग है तो वो 50-65 के बीच में आना चाहिए, मेरा अपील वाला है तो यहाँ पे आना चाहिए, मेरा असेसमेंट वाला है तो यहाँ पे आना चाहिए। ये लोग को करेंगे क्या, आपको उतना कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, एग्जाम इतनी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं बनाएंगे, मगर ये आपसे ये सवाल तो डेफिनेटली पूछेंगे कि आपको ये सेक्शंस पता है कि नहीं पता है। सिमिलरली आप कस्टम्स टैरिफ भी लेंगे तो जिस तरह से सर ने बताया कि 21 सेक्शंस है, 97 चैप्टर्स है, 98 इंडिया वाला है, तो उसका भी इंडेक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ब्रॉडली पता चल जाएगा कि मेरा केमिकल्स है तो ये चैप्टर से ये चैप्टर में आएगा, मेरा फूड स्टफ है तो ये चैप्टर से ये चैप्टर में आ जाएगा, मेरा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो अगर आप इतना भी करेंगे कि हर रोज 15 मिनट में मेरे जितने भी मुझे पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखनी है, कस्टम एक्ट देखना है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट देखना है, मैं उसका इंडेक्स दिन में एक बार देख लूंगा, तो आपको मेरे हिसाब से 20-25% का तो आपको आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरा राजेश सर, वी कैन ऑलवेज डू अ फॉलो अप क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए whenever you want on maybe Tuesday, Wednesday और Thursday और something like that। शाम को 2 घंटा किसी को भी कोई क्वेरीज है तो वो लोग पूछ सकते हैं। फिर सर ने जिस तरह से बताया, हमारे पास कुछ जी कार्ड के एग्जाम पेपर्स है, अरे क्वेश्चंस है, वो राजेश जी मैं कल या मंडे आपको भेज दूंगा, तो आप फिर आपके यहाँ आपने बोला था करीबन 40 लोग बैठ रहे हैं राइट एग्जाम के लिए? 49 है। 49 है, तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, तो आप वो 49 के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। जी ओके। जितना लुधियाना के क्वेश्चन पेपर्स तो मेरे पास नहीं है, मगर बॉम्बे के, अहमदाबाद के, दिल्ली के पास्ट में जो भी पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, और हमारी ऑफिस ने भी बैठ के ये जी कार्ड होल्डर्स की एग्जाम के लिए उनको हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। So I will send you that also, which you can give to all the people over there to help them, right? अभी we will open it up, अगर आपके पास कोई questions है तो please feel free to ask कि कैसे पढ़े, या अभी जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपके पास अगर कोई question है और आप पूछना चाहते हैं तो वीरेंद्र सर और मुझे बहुत आनंद होगा आपको जवाब देने में। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी एक पब्लिकेशन है सर एकेडमी की, हैंडबुक फॉर जी कार्ड एग्जामिनेशन फॉर कस्टम ब्रोकर स्टाफ, ठीक है, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon फॉर 685 रुपीज सर। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे जो कैंडिडेट्स हैं वो बुक लेना चाहते हैं तो कुछ डिस्काउंटेड हमको मिल सकती है, तो सर प्लीज, बिकॉज आवर एसोसिएशन हैज टू मेक, डजंट वांट टू मेक एनीथिंग इन दैट, अगर आप हमें जो भी लेस करके देंगे सर। 575। थैंक यू सर। आप मेरे को बोलो तो उतनी 110 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ से कुरियर कर सकेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिवली वी कैन आस्क सर, आई कैन सेंड यू द रिक्वायरमेंट एंड वी विल सेंड द मनी आल्सो, तो मैं इनको सर बांट सकता हूँ, क्योंकि दैट विल बी 49 में आपको कितनी चाहिए, 49 चाहिए तो हम लोग 49 बेच देंगे। हाँ, मैं ऐसा सर्कुलेट कर देता हूँ, कम बेच देंगे, बट जो भी पार्टिसिपेंट ये बुक देखेगा, ये बुक वीरेंद्र सर की सुपरविजन में किसी कस्टम्स के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट ने बनाई है और सर ने उसको कंपाइल करके करेक्ट किया है। उसमें सर ने कोशिश ये की है कि जी कार्ड का जितना भी करिकुलम होता है वो सब उन्होंने कवर कर दिया है। बुक के अंदर भी कोई 200 या 250-300 क्वेश्चंस है। उसके बाद
ऑफिस ने मेहनत करके और 200-300 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम आपको सभी भेज देंगे। तो आपके पास मेरे हिसाब से 500-600 क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही रहेगी कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की मेहनत मत करें। आप 3-4 दिन निकालिए पढ़ाई करने में, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स आंसर करने की कोशिश करें, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और राजेश भाई के साथ हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे जब भी शाम का 2 घंटा आपको क्वेश्चंस है, एंड आल्सो द अदर पार्टिसिपेंट्स हु हैव लॉग्ड इन फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन सेंड अ मैसेज टू अस, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। हमारे लिए वीरेंद्र सर, जिस तरह से राजेश भाई ने बताया, वो 3rd जनरेशन है, मैं 2nd जनरेशन हूँ। वीरेंद्र भाई की कंपनी को 90 साल होने को आए, मेरी कंपनी को 65 साल होने। हमारे लिए ट्रेनिंग एक पैशन है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये एग्जाम पास करें। तो हमारे लिए ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो हम बहुत ही लगाव से, चाव से आपको मदद करेंगे पास करने में, राइट। आप मैं आपको चैट बॉक्स में मैंने मेरा फोन नंबर लिखा है, और चैट बॉक्स में मैंने मेरी ईमेल आईडी भी लिख के दी है आप सभी को। तो आप प्लीज जब भी आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, को आइदर मैं या सर या दूसरे भी हमारे 2-3 दोस्त हैं, कोई ना कोई आपको जवाब लिख देगा। और सर यू कैन डू वन थिंग एल्स ऑल्सो राजेश भाई, जी सर, कि आप आपके 49 का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी मेड इट सर। हाँ, तो उसमें आप वीरेंद्र भाई को और मुझे ऐड कर दीजिए, तो किसी को सवाल पूछना यस, है इट विल बी तो इजीियर। यस, ग्रुप सवाल पे वहीं पे पूछ देगा, ठीक है सर। वो ग्रुप पे ही पूछ देगा। एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स हु हैव लॉग्ड इन फ्रॉम आउटसाइड, इफ यू सेंड मी योर नंबर्स, I will ask, we'll make a group for you also. Yes, yes, we can add in the same group. Yeah, so Rajesh bhai, Ludhiana group mein we can add everyone. 1 minute, there is somebody who has raised. Section 24 somebody is asked. Ravi Sharma has raised his hand. Ravi, आपको कुछ पूछना है? I have opened you up. आप अपना अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, फिर दीपेश मोरियानी ने पूछा है। देखो ये दीपेश, ये एग्जामिनेशन वाइड ओपन होती है, और हर साल हम लोग देखते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल बनाते हैं उसके बाहर ये कस्टम वाले जाके सवाल तो पूछते ही हैं। सो देयर कैन बी नो कमिटमेंट कि इसके बाहर के कोई सवाल नहीं आएंगे। मैक्सिमम वी कैन अश्योर यू कि एटलीस्ट 80-85% विल कम ओनली फ्रॉम दीज बुक्स, राइट। उसके बाद अच्छा, लोग तो सिर्फ नंबर्स ही लिख रहे हैं, कोई नाम नहीं बोल रहा, नाम नहीं लिख रहे ना। हाँ, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा, अपना नाम लिखिए। अच्छा वीरेंद्र सर, आप सेक्शन 24 के बारे में कुछ बता सकेंगे सत्यम को? सो सेक्शन 24 जो एक है, दैट इज उनका हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 24 सेज इट इज डीनेचरिंग एंड म्यूटिलेशन। डीनेचर करना यानी जो इथाइल अल्कोहल जो आता है आमतौर पे, जिसकी रेट ऑफ ड्यूटी काफी हाई होती है, 70%, 80% या ऐसे कुछ कोई पदार्थ रहते हैं, लेकिन आपका वो मेन चीज है कि आपको उसको 70-80% के प्योरिटी में नहीं यूज करना है, आपको 4% या 5% की प्योरिटी में यूज करके आपको यूज करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में डीनेचरिंग एंड स्पिरिट रूल्स करके एक रूल्स बनाया हुआ है, denaturing spirit rules 1972. So in that, when the material is coming, ethyl alcohol, bitter chemicals are added by the custom officer, और उसके तहत जब उसकी डाइल्यूशन कम हो जाती है 4% या 5%, जो आपका इंटेंडेड इंपोर्ट था, तो उसके तहत जो डाइल्यूटेड ethyl alcohol हो गया with a purity of 4% or 5%, on that rate of duty, on that goods you will be charged the rate of duty, and not to the rate of duty which was there of the purity of 70% or 80% which was imported. So this is known as denaturing. Change the nature
और डी नेचर, to change the nature of the goods and make them in such a form that it was as if it was as if imported in that manner. यानी उसका मतलब होगा कि as if आपने वही तरह से इंपोर्ट किया है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी वही लगेगी और डी नेचर ये इथर अल्कोहल की पूरी ड्यूटी नहीं लगेगी. म्यूटिलेशन बोर्ड जो यूज किया गया है यहाँ पे सेक्शन में, उसको म्यूटिलेट करना या उसको जैसे समझ लिए स्क्रैप आता है, स्क्रैप में एक पूरा पाइप आ गया बड़ा सा, या कभी कभार कोई वॉर टोन कंट्री से और भी कुछ कारतूस ऐसा कुछ आ जाता है बाय मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट, या कभी कोई जैसे टैप यानी अपना घर पे नल जो रहता है बाथरूम में वो आ गया, तो उसको मार के या कट करके उसको म्यूटिलेट कर देते हैं, यानी वो टैप के हिसाब से या पाइप के हिसाब से वो यूज ना हो, उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन. तो ये सेक्शन 24 में इसका वर्णन किया गया है और उसके रूल्स भी हैं. दैट इज सेक्शन 24. यस. Any other questions, please? कह रहे हैं सर पढ़ के बताएंगे सर. एक मिनट शैलेश एक्सपॉन्ड एंड वर्मा, इनबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का थोड़ा गाइडेंस मांगा है. जी सर. इनबाउंड और एक्सबाउंड का थोड़ा गाइडेंस मांगा है सर. इनबाउंड एंड एक्सबाउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको समझना है कि जब भी इंपोर्ट आता है इंडिया में तो इंपोर्टर जो है उसको कंपल्सरीली सेक्शन 46 के तहत बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है. एक होती है होम कंजम्पशन या वेयरहाउसिंग, दोनों में से कोई भी एक बिल ऑफ एंट्री आप फाइल कर सकते हैं. तो जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की वेयरहाउसिंग की तो आपने ड्यूटी नहीं भरी है और फिजिकल बॉन्डिंग में आपने वेयरहाउसिंग में माल डाला और आपको पता है कि चलो अभी पार्टी बोलेगी कि अभी मुझे माल नहीं चाहिए, 1 महीने के बाद आप एक्स बॉन्ड करिएगा. तो सेक्शन 68 के तहत तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे वेयरहाउस बिल ऑफ एंट्री, दैट इज नोन एज बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जिसमें आप सेक्शन 59 के तहत ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड देंगे और बाकी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करेंगे, स्पेस सर्टिफिकेट जो भी होता है वो लाते हैं हम लोग, और आपका माल फिजिकली बॉन्ड होता है. तो अभी तक जब ड्यूटी नहीं भरी है तो आपकी वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है आपको, ऑल्दो यू आर द ओनर ऑफ द मटेरियल. अभी जब 1 महीने के बाद जब इंपोर्टर बोलेगा कि आप मुझे ये अभी माल निकाल दीजिए 20 टन, अभी मुझे काम लगेगा, मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द बॉन्ड, दैट इज नोन एज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68. सो जिस दिन आप फाइल करते हो, समझो मैंने आज फ्राइडे है, मंडे को मैंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तो मंडे को जो रेट ऑफ ड्यूटी है कस्टम टैरिफ एक्ट में वो मुझे लगेगी, जो असेसमेंट के टाइम हुई है जब मैंने 1 महीने पहले माल डाला है वो नहीं लगती. But that is known as X bond. That is under section 68. ड्यूटी वही लगती है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है. इतना ही याद रखिए आप. सेक्शन 68 भी याद रखना आप. हाँ 68, ये 59 और 68 की सर ने बात करी है. और समीर भाई ने जब अपना एड्रेस करा था तो उसमें एक मूवर स्कीम की बात करी थी, उसको भी आप पढ़ेंगे कि वो सेक्शन 58 और 65 की बात करेगा. ठीक है, तो आप मेरे से भी थोड़ा ले लेना ट्रेनिंग, मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगा आपको. Pilfered goods satyam is that when जो goods normally CFS में रहते हैं, तो CFS क्या होता है? कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो कस्टोडियन के निगरानी के अंदर रहता है, बराबर है. सो कस्टम आउट ऑफ चार्ज देने के पहले कोई माल में से चोरी होगी, उसको पिल्फर बोलते हैं और सेक्शन 13 में आता है, 13 नंबर सेक्शन 13. सो पिल्फर्ड गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर स्टोलन, जो चोरी हो गए हैं बिफोर कस्टम्स आउट ऑफ चार्ज. और ऐसे होने के लिए जब ऐसा कुछ होता है तो जो कस्टोडियन है उसको तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो समझो 1 लाख का मेरा माल चोरी हो गया, तो 1 लाख जो ड्यूटी मैंने भरी है, सॉरी 1 लाख की ड्यूटी भरा हुआ माल मेरा चोरी हो गया, तो कस्टम डिपार्टमेंट मुझे रिफंड दे देगी 1 लाख रुपया. और 1 लाख रुपया जो
CFS के निगरानी के अंडर से उनके नाक के नीचे जो माल चोरी हो गया एग्जाम्पल, वो उनको गवर्नमेंट को दे देगी. दैट इज व्हाट इज नोन एज पिल्फरेज. समझ में आया? अभी दूसरा पिल्फरेज में आपको एक शब्द और 2 लाइन बोल दूं. चंद महीनों के बाद आपका माल मिल जाता है, तो आपको माल जो वापस दिया गया और आपने ले लिया, तो जो 1 लाख रुपया जो ड्यूटी आपको रिफंड मिली है गवर्नमेंट से, वो आपको वापस दे. दैट इज द फुल थिंग ऑफ सेक्शन 13. यस. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो क्या कहती है कि इंपोर्टर को जितना माल मिलेगा, इंपोर्टर उतने पे ही ड्यूटी भरेगा. आप दोबारा सुनिए, इंडिया क्या कहता है, इंपोर्टर को जितना माल मिलेगा उतने पे ही वो ड्यूटी भरेगा. मगर उसके साथ इंडिया और एक चीज कहती है, जो ये है कि इंडिया में जो भी माल आएगा उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी. इंडिया में जो भी माल आएगा उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी. सो पिल्फरेज का मतलब ये होता है कि आपकी बिल ऑफ एंट्री आपने 400 बैग की एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइल की है, और बीच में कहीं आपने डिलीवरी ले ली, उसके पहले आपका कार्गो चोरी हो गया, थोड़ा सा चोरी हो गया, और आपको 380 बैग मिले. तो आप एज एन इंपोर्टर क्या बोलेंगे कि मुझे तो 380 बैग मिल रहे हैं, मैं 380 की ड्यूटी दूंगा. 2 चीजें, एक आपको आउट ऑफ चार्ज के पहले पता चलता है तो आप 380 की ड्यूटी भरते हैं. आप ड्यूटी भरने के बाद आपको पता चलता है और आउट ऑफ चार्ज के पहले तो आप 20 बैग की रिफंड मांगेंगे. मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहेगा, कैरियर, शिपिंग लाइन, एयरलाइन या जो भी है, आप 400 लेके आए, आपने 400 कस्टोडियन को जमा किया, तो 20 बैग की ड्यूटी मुझे कस्टोडियन देंगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड द गैप ओवर देयर कि 400 की 400 बैग पे ड्यूटी तो लगनी है. इंपोर्टर को जितना माल मिलेगा उस पे इंपोर्टर भरेगा. इंपोर्टर को जितना माल नहीं मिलेगा और इंडिया आने के बाद अगर इंपोर्टर को नहीं मिला, तो जिसकी भी कस्टडी में वो कार्गो था उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे. सर, देयर इज समथिंग ऑन 23CA. So section 23 pertains to when you abandon the goods or if the goods are lost or destroyed. In that case, the AC or the DC will remit the duty, means he will give you that refund before, as long as custom out of charge is not done. That is covered in section 23 subsection 1. So remission of duty for lost and destroyed goods, वो उसका heading है, lost and destroyed. Section 23 subsection 2 क्या बोलता है? It is known as abandoned goods or where relinquishment of title. आपने लेटर दे दिया कस्टम को, मैं ये माल नहीं निकालूंगा, मुझे नहीं चाहिए, और आपने समझो बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के तहत आपने लेटर दे दिया कि अभी ये माल मुझे नहीं निकालना है और मैं नहीं निकालने वाला हूँ, मैं मेरा टाइटल जो है वो रिलिंक्विश कर देता हूँ, यानी मैं गुड्स को अबेंडन कर देता हूँ. उसके बाद इंपोर्टर को ड्यूटी नहीं भरनी पड़ी. दैट इज व्हाट इज अबेंडन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, after the Finance Act of 2005, you cannot relinquish the goods where any offense has been committed. That is what is also given in the Act, and that is section 23. Sorry, में राजेश भाई के साथ जो बैठे हैं वहां से कोई सवाल नहीं आ रहे हैं. आप ऐसा मत समझे कि जो भी होगा हम राजेश भाई को फोन करके पूछ लेंगे, ऐसे नहीं होता है. एक सवाल पूछा गया है, अपील इन शॉर्ट. अपील इन शॉर्ट. तो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील रहता है सेक्शन 128 में कमिश्नर अपील्स. तो कमिश्नर अपील्स में जाने के पहले जो भी ऑर्डर पास होता है, दैट इज पास्ड बाय एन ऑफिसर लोअर इन रैंक देन कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. तो समझे डीसी, एसी, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है कॉन्फिस्केशन का या जो भी हो, पेनल्टी डालता है अपने पे, या कुछ वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, वैल्यू में ड्यूटी बढ़ा देते हैं, तो फर्स्ट लेग ऑफ अपील सेक्शन 128 के तहत जाता है कमिश्नर अपील्स में.
दूसरा लेग एक है वो जाता है सिस्टैट में, यानी ट्राइब्यूनल जो बोलते हैं, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। लेकिन ट्राइब्यूनल में सिर्फ वैल्यूएशन, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ, ये केस जा सकते हैं। और बाकी के जो केस रहते हैं जैसे बैगेज, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्रॉबैक, these go to revision application in to central government under section 129DD। तो आप जब चैप्टर खोलोगे चैप्टर 15 तो उसमें अपील भी लिखा है और रिवीजन भी लिखा है, अपील्स एंड रिवीजन। तो रिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, अपील जाता है पहले फर्स्ट लेग में कमिश्नर अपील्स, बाद में सिस्टैट, और सिस्टैट में जो आप तो भी हार गए तो इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में आमतौर पे कोई भी केस नहीं जाता है, उसमें थोड़ा अलग नजरिया है। उसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 130 में, तो इट इज रिटन एज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मींस जो कभी ट्राइब्यूनल ने कोई एक मुद्दा अपने डिसीजन में या ऑर्डर में नहीं उठाया और हमको लगा कि नहीं इसमें काफी अहमियत है वो एक मुद्दे की जो ट्राइब्यूनल ने इग्नोर किया है या उसमें कोई ज्यादा चर्चा नहीं की है, तो हम हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, व्हाट इज नोन एज सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। So these are the totally in appeals. Okay, I will answer the next question. Advanced license in short. इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऐसा कहता है कि आप कभी भी टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या है कि कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उनके कंट्री के जितने भी ड्यूटी और टैक्सेस है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तो ही उनकी वो आइटम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगी। अगर इंडिया में कोई भी ड्यूटी है वो आइटम के ऊपर और वो ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट कर लेते, माने ड्यूटी की वैल्यू कमोडिटी की वैल्यू पे ऐड करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती है। तो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो कहता है कि आप टैक्सेस एक्सपोर्ट मत करें, आप सिर्फ कार्गो एक्सपोर्ट करें। ये एक चीज आप लोग याद रखना। दूसरा ऐसा है कि इंडिया में जो भी आइटम आती है उसके ऊपर ड्यूटी है। नील रेट ऑफ ड्यूटी भी ड्यूटी है, जीरो रेटेड ड्यूटी भी ड्यूटी है। सो ड्यूटी तो सभी आइटम्स पे है। तो इंडियन क्या इम्पोर्टेंस क्या कहते हैं कि सर मैं इंपोर्ट करता हूं तभी आप मुझे ड्यूटी मेरे से ड्यूटी ले रहे हैं, और जब भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा तभी आप मुझे ड्यूटी और टैक्सेस वापस कर देंगे। तो हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि मैं जब भी इंपोर्ट करता हूं तभी मैं आपको ड्यूटी नहीं देता हूं, और जब भी मैं एक्सपोर्ट करता हूं तभी आप मुझे कुछ वापस मत कीजिए। ये जो पूरी स्कीम है कि जहां पे आप इंपोर्ट करते समय ड्यूटी नहीं भरेंगे और एक्सपोर्ट करने के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ नहीं देगा, इसको एडवांस लाइसेंस कहते हैं। दूसरा नाम है उसका DEEC, ड्यूटी एग्जम्पशन एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। तो इंपोर्टर जो भी होगा वो जाके DGFT में एक एप्लीकेशन करता है, DGFT में एप्लीकेशन करता है, DGFT उससे बॉन्ड श्योरिटी जो भी लेना है वो लेता है और उसको एक लाइसेंस देता है जिसको हम लोग एडवांस लाइसेंस बोलते हैं। वो एडवांस लाइसेंस के नीचे वो इंपोर्ट करता है, ड्यूटी नहीं भरता है, उसके सामने वो एक्सपोर्ट्स करता है, उसके जो भी प्री डिसाइडेड नॉर्म्स रहेंगे कि इतने इंपोर्ट के सामने आपको इतना एक्सपोर्ट करना है, वो जो उनके प्री डिसाइडेड नॉर्म्स रहेंगे उस हिसाब से वो एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करने के बाद वो कस्टम में जाके एक प्रूफ लेता है, वो प्रूफ DGFT को सबमिट करता है जिसको हम लोग EODC बोलते हैं, और वो इसका एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन खत्म हो गया तो कस्टम्स उसको DGFT उसको उसका बॉन्ड या उसकी जो भी श्योरिटी है वो उसको वापस कर देंगे। सो दैट इज एडवांस लाइसेंस फॉर यू। ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब भी आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तभी आपको
कोई भी टैक्सेस नहीं भरने हैं। मगर इंडिया के अंदर किसी ने ईओयू बनाया, किसी ने एसईजेड बनाया, किसी की फैक्ट्री एसईजेड या एफटीडब्ल्यूजेड के अंदर है, तो उसको ऐसा कोई भी उसके ऊपर बंधन नहीं है कि उसको सिर्फ इंपोर्ट, उस पर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वो सिर्फ उसको फॉरेन से माल खरीदना है। वो इंडिया से भी माल खरीद सकता है, और जब भी वो इंडिया से माल खरीदता है तो वो जो इंडियन सप्लायर है वो क्या बोलेगा कि सर मैं तो एसईजेड को सप्लाई कर रहा हूँ, एफटीडब्ल्यूजेड को सप्लाई कर रहा हूँ, और एसईजेड और एफटीडब्ल्यूजेड लीगल पर्पसेस के लिए इंडिया में नहीं है, तो आप मुझे एक्सपोर्ट का बेनिफिट दीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी देती है। ऐसे एक्सपोर्ट को डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं, जहां कार्गो इंडिया के बाहर नहीं जाता है मगर उसको एक्सपोर्ट की सभी सुविधाएं मिलती है, और वो सप्लायर जो होता है उसको डीम्ड एक्सपोर्टर बोलते हैं, राइट? Kavita, I cannot answer you a question on specific duty because then I have to read the tariff, I have to check everything, I can't answer you, and that is not going to be a G-card examination question for you. Right? Let me see if there were more questions over here. 1 second. हाँ बोलो। फैग और पैग को एक्सप्लेन कर दो। फैग और पैक की एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं सॉरी, किसकी सर? फैग और पैक की, फेसलेस असेसमेंट और पोर्ट असेसमेंट ग्रुप की मतलब पूछ। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आपको कम से कम परेशानी होनी चाहिए। अभी आप लोग सब हंसेंगे, बट द रियल फैक्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आपको कम से कम परेशानी होनी चाहिए। दूसरा, सरकार का मानना है और हमारा सबका मानना है कि अगर मुझे कस्टम के ऑफिसर को नहीं मिलना है तो चांसेस आ कि मेरा क्लियरेंस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और मुझे परेशानी कम होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट ये है कि जिस तरह से लुधियाना में कुछ ही आइटम्स इंपोर्ट होते हैं, लुधियाना में चैप्टर 1 टू चैप्टर 99 सभी चैप्टर्स नहीं यूज होते हैं, ठीक है? आपके यहाँ कदाच 15 या 20 चैप्टर्स यूज होते होंगे, 98 चैप्टर्स नहीं यूज होते, कहीं पे भी 98 चैप्टर्स यूज नहीं होते हैं। तो आपके यहाँ जो भी ऑफिसर बैठा है उसको कुछ चैप्टर्स में ज्यादा जानकारी है और कुछ चैप्टर्स में जानकारी कम है, इसलिए। और ये नेक्स्ट पैरामीटर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमको 24/7 कस्टम क्लियरेंस कराना है, इसलिए इन्होंने जो ट्रेडिशनल मॉडल था कि आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते थे, वो अप्रेजर के पास जाता था, सुपरिंटेंडेंट के पास जाता था, वो पास करता था, या वो एग्जामिनेशन ऑर्डर देता था, आप एग्जामिनेशन कराते थे, फिर असेसमेंट कराते थे, काउंटर सिग्नेचर लेते थे, ड्यूटी भरते थे और माल बेच देते थे। उन्होंने सबसे पहले उसको फैसिलिटेट कर दिया और आरएमएस मॉड्यूल लेके आए। आरएमएस मॉड्यूल में क्या हुआ कि जब भी आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करते हो तो वो बिल ऑफ एंट्री पहले रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल में जाता है, वो डिसाइड करता है कि इसमें से कौन सी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल असेसमेंट के लिए जाएंगी, कौन सी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगी, या कौन सी बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट में भी नहीं जाएंगी, एग्जामिनेशन में भी नहीं जाएंगी। जितनी बिल्स ऑफ एंट्रीज एग्जामिनेशन और असेसमेंट में जाती है वो आपके लोकेशन के ऑफिसर के पास जाती है ताकि वो उसको असेसमेंट कर सके। ये जो असेसमेंट वाला पोर्शन है इन्होंने फेसलेस माने एक पैरेलल क्रिएट कर दिया। और पैरेलल क्या क्रिएट कर दिया कि एक नया कमिश्नरेट बनाया जो वर्चुअल कमिश्नरेट है, माने कहीं पे भी कोई ऐसे साथ में बैठ के एक कस्टम हाउस एक ग्रुप ऐसा नहीं है। तो आप जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो वो पहले आरएमएस में जाता है, फिर आरएमएस डिसाइड करता है कि ये असेसमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद सिस्टम डिसाइड करता है
कि ये असेसमेंट वाली फाइल आपके लोकेशन पे जाएगी या किसी और लोकेशन पे जाएगी। जब भी आपकी फाइल किसी और लोकेशन पे जाती है उसको फेसलेस बोलते हैं, और जब भी वो फाइल आप ही के लोकेशन पे जाती है तभी उसको PAG बोलते हैं। उसके बाद की प्रोसेस इज द सेम, राइट? इज दैट ओके विथ एवरीवन एज एन आंसर? SCMP और क्या है? SCMP सी कार्गो सी कार्गो मान लो। ओके, फिर उसके पहले किसी ने लिखा है ब्रांड रेट एंड ऑल इंडस्ट्री रेट। So I will take that. Yeah, please do that. I was just going to request you to do it. So the customs and duty drawback rules 2017 बनाए गए हैं। वो रूल्स के तहत गवर्नमेंट रूल 3 में हर साल ड्यूटी के जो आफ्टर एवरी जो क्या बजट के बाद इट टेक्स एन एवरेज इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी कि भाई इंडिया में इतने सारे माल में नॉर्मल ड्यूटी कितना आता है, उसको नजर में रखते हुए एक ऑल इंडस्ट्री रेट वो नोटिफिकेशन में देती है, जिसके अगेंस्ट हम लोग आमतौर पे शिपिंग बिल फाइल करते हैं और अपने को अपना शिपिंग बिल में 1% हो या 1.5%, 2% मिल जाता है। लेकिन कभी कभार ये रूल 3, 4 और 5 में दर्शाया गया है। लेकिन जो अपना मटेरियल जो है जिसमें हमने ड्यूटी यूज की है या उसमें कोई टैक्स है उसमें या ड्यूटी है, सेस है, जो भी है, IGST है, जो मेरा वो प्रोडक्ट जो है समझ लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो बुक में नहीं, जो नोटिफिकेशन में नहीं है, जो ब्रांड रेट जो ऑल इंडस्ट्री रेट में दी है, तो मैं रूल 6 के तहत एक ब्रांडेड एप्लीकेशन करूंगा फ्रॉम द कस्टम स्टेशन जहां से मैंने एक्सपोर्ट किया था। मैंने लुधियाना से किया था, तो लुधियाना कमिश्नरेट में मैं ये कस्टम स्टेशन जो है, जो कमिश्नर है उसके ऑफिस में मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा ब्रांड रेट कि ये शिपिंग बिल है मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑल इंडस्ट्री रेट में जो आप गवर्नमेंट ने जो निकाला है नोटिफिकेशन में उसमें मेरा प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना मेरा जो मटेरियल है वो यूज हुआ है, इतना मेरा टैक्स है, तो आप मुझे ब्रांड रेट दे दीजिए फॉर माय वन शिपिंग बिल और नंबर ऑफ शिपिंग बिल्स, एंड दैट इज डन अंडर रूल 6 ऑफ द कस्टम्स एंड ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स 2017। ब्रांड रेट एंड ऑल इंडस्ट्री रेट इज क्लियर। SCMTR क्या है? जब भी कार्गो इंडिया आता है या जब भी कार्गो इंडिया से जाता है तो कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल। इंपोर्ट साइकिल इंडिया में शुरू कब होती है और इंपोर्ट साइकिल इंडिया में खत्म कब होती है? इंडिया में इंपोर्ट साइकिल कार्गो इंडिया आता है तभी शुरू होती है, और कस्टम्स जब भी आउट ऑफ चार्ज देता है तभी वो साइकिल खत्म होती है। एक्सपोर्ट में वो साइकिल शिपिंग बिल फाइल करते समय शुरू होता है, और जब भी कस्टम हाउस आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है तभी वो साइकिल खत्म होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में जो भी कार्गो आएगा उसके ऊपर ड्यूटी है, वो एक चीज आपको याद रखना है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? आपने पैसे भेजे, माल आना चाहिए, आपने माल भेजा, पैसे आने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कुछ नहीं कहता है। आपने पैसे भेजे, माल आना चाहिए, आपने माल भेजा, पैसे आना चाहिए। ये दूसरी चीज आप याद रखें। अभी जब भी कोई भी कन्वेयंस, शिप होगी, एयरक्राफ्ट होगा, ट्रेन होगी, कोई ट्रक होगा, जब भी वो इंडिया पहली बार आता है, उस जर्नी में, वो वॉयज में जब भी वो पहली बार आता है तभी उसको कस्टम्स को एक लिस्ट देना पड़ता है कि मेरे कन्वेयंस में इतना माल है, इतना माल मैं अनलोड करूंगा, इतना माल मेरी शिप पे रहेगा या मेरे प्लेन में रहेगा, और ये माल मैं आगे लेके जाता हूँ। ये जो माल मैं नीचे उतार रहा हूँ, इतना माल इसी पोर्ट पे क्लियर होगा। नवाशेवा है, मुंद्रा है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, और इतना कार्गो आगे चला जाएगा, लुधियाना जाएगा, जयपुर जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो ये जो सारी डिटेल्स वो फाइल करता है उसको IGM कहते हैं, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जो आइटम उसके ऊपर रहेगी वो भी IGM का पार्ट होता है। सिमिलरली जब भी वो
इंडिया छोड़ के जाता है तो इंडिया से निकलने के पहले वो दोबारा एक लिस्ट कस्टम्स में फाइल करता है और वो लिस्ट को हम लोग एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं। उसमें भी यही चीजें आती है कि मेरे शिप पे इतना कार्गो है, इतना मैंने यहाँ से लिया है, इतना ये आईसीडी से आया है और आप मुझे परमिशन दे मेरी शिप या मेरे एयरक्राफ्ट को इंडिया से बाहर लेके जाने की। ये इनकी पूरी सिस्टम होती है आईजीएम और ईजीएम की, और ये काम होता है कैरियर का। अभी इनको सिस्टम में लेके आने के लिए, ईडीआई सिस्टम में लाने के लिए और बहुत सारी चीजें जो इतना सारा फैसिलिटेशन हुआ उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए नए रेगुलेशंस बनाए हैं और वो रेगुलेशंस को हम लोग SCMTR कहते हैं। और वो रेगुलेशंस इतना ही कहता है कि आप ये टाइम पे फाइल करेंगे, इस तरह से फाइल करेंगे, आपसे आगे इस तरह से उसका प्रोसेस होगा जाने के लिए, उसका फाइलिंग इस तरह से होगा, कस्टोडियन क्या करेगा, आपको डिलीवरी कैसे मिलेगी एंड ऑन रिवर्स साइकिल। तो इनके लिए जो रेगुलेशंस बने हैं उसको SCMTR regulations कहते हैं, right? So if there are no more questions, राजेश भाई? नहीं सर, और क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक everybody is very much appreciable of this first session. बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, कैसे आपने बताया कि कस्टम ब्रोकर का रोल क्या है, ठीक है। तो हम लोग कई बार निराश भी होते हैं कि क्या कस्टम ब्रोकर का है, पर कितना भारत का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने में कितना बड़ा योगदान कस्टम ब्रोकर्स का है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, इतना बड़ा चेंज था, और वो सारा बर्डन कोई समझे या ना समझे डिपार्टमेंट पे तो रहेगा, बिकॉज उनका डिपार्टमेंट है, उनको करना है, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में कितना योगदान एक कस्टम ब्रोकर का रहता है। तो वो सब चीजें जो आपने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी, आपने बताया कि ऑब्लिगेशंस में कितनी, जो 17 ऑब्लिगेशंस है वो हमारे लिए रोज हर जॉब पे इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एक रिमाइंडर की तरह से भी लेना चाहिए कि हमको हर चीज करनी है। केवाईसी कर लिया, खाली वही एक ऑब्लिगेशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में कैसे क्या रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स हैं, और कैसे हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमें जी कार्ड या एफ कार्ड या लाइसेंस मिलता है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ऐड होती हैं। पेनल्टी के भी प्रोविजंस हैं, सस्पेंशन का भी है और रेवोकेशन का भी है। तो जी कार्ड के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसलिए दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए। अगर आपका वे फॉरवर्ड जो हम बोलते हैं, आगे आपको जाना है, आपको बनना है, CHA अपना लाइसेंस लेना है, तो ये एक छलांग आपको लेनी है। उसके लिए आप बिना तैयारी के अगर कुछ करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, और तैयारी करने के लिए इतने डेडिकेटेड अगर आपको गुरु मिलेंगे तो आपके लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। Thank you very much and all the very best to everyone. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.